Hello everyone, welcome to Shriram IAS. In 1 PYQ a day series, today we are going to discuss internal security question. Before starting with the question, let's have a look at a first year and a 2-year foundation course. And to know more about it and also to get your doubts solved, you can click on the pinned comment and get a free mentorship session. So few features of a 1 year and 2-year foundation courses, and here is the question of internal security which appeared in year 2024, right? So the question reads, social media and encrypting messaging services pose a serious security challenges. What measures have been adopted at various levels to address the security implication of a social media? Also suggest any other remedies to address the problems. Now, when you look at this question is quite a easy one, 15 marker question, 250 words. Question is on easier side because of social media. Yes, everyone knows social media and even encrypting messaging services. ठीक है ना? तो जब ऐसे क्वेश्चन आता है विच इज़ फ्रॉम दी वेल नोन एस्पेक्ट्स एंड डायमेंशंस, यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड ऑल्सो द मीनास क्रिएटेड बाय दी सोशल मीडिया एंड इनक्रिप्टिंग मैसेजिंग सर्विसेज इज वाइडली डिस्कस्ड. तो इसको हम ब्रीफ में देखेंगे हाउ टू अप्रोच फॉर दिस क्वेश्चन, राइट? सो व्हेन यू टॉक अबाउट सोशल मीडिया कनेक्टिविटी, है ना, पीपल टू पीपल, people to organization, anyone you can connect through social media. Encryption means protected. Inscription, whatever message you are sending from one node to another node, that message is encrypted. That means it is protected and no third party can access, read those messages. ठीक है? अब देखिए, सोशल मीडिया है जहाँ पे इट प्रोवाइड्स यू अ कनेक्टिविटी, एट द सेम टाइम दीज मैसेजेस आर प्रोटेक्टेड. यू हैव टू अंडरस्टैंड इट प्रोवाइड एनोनिमिटी, है ना? वी नो सोशल मीडिया वन कैन क्रिएट अकाउंट बाय एनी नेम्स, राइट? करेक्ट. So that anonymity is there, and that's why you have to understand the whole crux of this question, that whenever there is anonymity and a great accessibility due to digital penetration, one can message to anyone and can actually communicate anything which he want. Now the whole communication depends on the person. If someone wanted to communicate or transmit a good information or maybe information from the general welfare of the masses, that will have a positive implications, right? But at the same time, if someone with a ill intention, right, if he sends a message, serious security challenges, right, it is clearly written over here. And of course, when they possess a security challenges, it will have a implication on the security, right? So they're asking what measures we have been adopted. First of all, adopted, already in place, and what other things you can suggest, right? Question is very straightforward. So let's talk about briefly the introduction. You can talk about a digital revolution. क्या हुआ डिजिटल रेवोल्यूशन से? पेनिट्रेशन ऑफ इंटरनेट, बेसिकली सोशल मीडिया डे टू डे लाइफ में आ चुका है अभी ये. दिस अलॉन्ग विथ एनोनिमिटी, तो एक फैक्टर है, सीक्रेसी फैक्टर बेसिकली, है ना? इससे क्या होगा? सीक्रेसी फैक्टर है डिजिटल रिवोल्यूशन की वजह से. एवरीवन इज हैव एक्सेस टू द सोशल मीडिया डे टू डे लाइफ. सो नाउ व्हेन यू यूज दिस फॉर द इल पर्पज, poses a challenge.
ठीक है, मतलब these are the grounds on which you can frame the introductions. There may be a multiple ways. You may just talk about any recent event which triggered a threat to the security. हो सकता है कि किसी ने एक फेक हॉक्स फैला दी कि लुक देयर इज अ बॉम्ब ऑन अ पर्टिकुलर प्लेन या कहीं और पे, राइट नाउ, बट दैट इज अ सिक्योरिटी थ्रेट. और होक्स मेल मैसेजेस सोशल मीडिया से हुआ, राइट, बिकॉज इट हैज़ अ ग्रेटर रीच. अब ये है भी इल पर्पज एंड चैलेंज, क्यों? बिकॉज ग्रेटर रीच, है ना. तो इस तरीके से यू हैव टू अराइव एट ए इंट्रोडक्शन वेर यू कैन फ्रेम अ स्टेटमेंट बेस्ड ऑन ऑल दीज एस्पेक्ट्स, करेक्ट. नाउ अगेन जस्ट लुक एट द क्वेश्चंस. Measures adopted, right, for what? To address the security implication. So here body of an answer, here first part, measures adopted at various level. Just give a little attention at a various level. हो सकता है हमने बहुत सारे मेजर्स लिए, ऑफ कोर्स वी आर ऑलवेज टेकिंग इट, है ना. तो आप यहाँ पे बताएंगे वेरियस मेजर्स अडॉप्टेड एट वेरियस लेवल. एक बात ये भी हो सकती है कि मान लीजिए हमने क्वेश्चन स्टेटमेंट देखा यहाँ पे, राइट, कि देयर आर अ सिक्योरिटी चैलेंजेस. अगर आप चाहते हैं कि इन अ ब्रीफ, वेरी ब्रीफ, देखिए दैट क्वेश्चन स्टेटमेंट बेसिकली इज नॉट अ कोर डिमांड, बट यहाँ पे क्लियर कट लिखा गया है कि सोशल मीडिया एंड मैसेजेस पोजेस अ सिक्योरिटी चैलेंज, है ना. तो आप एक ब्रीफ में सिक्योरिटी चैलेंज दे सकते हैं थ्रू यूज ऑफ नॉवेल्टी. सिक्योरिटी चैलेंज क्या है? सोशल मीडिया एनक्रिप्टेड मैसेज, हमें पता है, हमने बात की उसकी. सोशल मीडिया एंड एनक्रिप्टेड मैसेज, है ना. हम बताएंगे फेक न्यूज है, प्रोपेगेंडा है, राइट. फेक न्यूज होता है, प्रोपेगेंडा होता है, आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है लीक हो जाती है. यू कैन ऑल्सो कॉल इट अ डेटा ब्रीच, है ना. हम बस बताना चाह रहे हैं कि थ्रू सोशल मीडिया एंड इनक्रिप्टेड मैसेज सर्विसेज, ये जो सोशल मीडिया का सारा एक जाल है, अ वेब ऑफ इट, दैट पोजेस अ सर्टेन चैलेंजेस, राइट. इसके अलावा देखेंगे आप साइबर बुलिंग भी होती है. नाउ अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट द कोर डिमांड, इसलिए हम उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, नहीं तो हमें पता है फेक न्यूज़ शायद मॉब लिंचिंग को एक जनरेट कर दे, इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है. प्रोपेगेंडा, आईसीस के लोग बैठे हुए, दे आर हायरिंग एंड ब्रेन वॉशिंग अ पीपल फ्रॉम southern states, maybe in Jammu and Kashmir it's happening. They are brainwashing young people. Cyberbullying. There will be a youth disintegration, a dissociation. Bullying होती रहेगी. He will be just simply withdrawing from the society and normal norms. Annihilation create जब होगा तो he will be involved into some or maybe any other such act which will pose a challenge, security challenge, है ना. लिखना नहीं है, हमें पता होना चाहिए कि वाई वी आर राइटिंग इट. पर्सनल इंफॉर्मेशन है, डेटा ब्रीच हो गया. पर्सनल इंफॉर्मेशन भी शायद इट कैन हार्म अ लॉट, है ना. मे बी पीपल आर वर्किंग इन ऑल द इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नमेंट, राइट. सब नहीं, बट कोई ना कोई तो कर ही रहा होता है. वी हैव अ केसेस ऑफ हनी ट्रैपिंग. क्या है ये? सोशल मीडिया से आप कनेक्ट होते हो, that particular person is working in a sensitive department of the government only to extract the information, the whole thing. तो एक ये है, इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं. आफ्टर दैट ऑफ कोर्स वी हैव टू जंप ऑन द बॉडी पार्ट, इसको हम थोड़ा एलैबोरेटिव लिखेंगे, बट द फर्स्ट थिंग थोड़ा, है ना, 250 वर्ड्स है, लॉट मेनी थिंग्स टू राइट.
नाउ मेजर्स अडॉप्टेड, अब देखेंगे तो क्या है, हमें पता है लेजिस्लेटिव मेजर्स है, आपको पता होगा आईटी एक्ट 2021, है ना, काफ़ी न्यूज़ में था जब नए नए में ये एक्ट आया था। एंड व्हाट वी कॉल इट बेसिकली आईटी एक्ट, मतलब हम ऐसे क्या बोलते हैं उसे, इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड, करेक्ट। तो ये था, इसमें बताया गया था कि हाउ इंटरमीडिएरीज मीन्स अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर रिस्पॉन्सिबल, दे नीड टू हैव अ ग्रीवांस ऑफिसर्स, है ना। तो उतने डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज मेजर्स अडॉप्टेड, तो ये हम अडॉप्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, राइट, वी ऑलरेडी हैव दिस थिंग्स। इसके बाद क्या कर रहे हैं हम, देखो ये लेजिस्लेटिव लेवल पे हो गया, देन पब्लिक लेवल पे पब्लिक अवेयरनेस, हो सकता है बोल दीजिए साइबर हाइजीन, साइबर हाइजीन वीक हम सेलिब्रेट करते हैं, सेलिब्रेट बेसिकली वी जस्ट प्रमोट इट कि लुक this particular thing, security over the digital space, it based on how you operate, so cyber hygiene public awareness aspect is there. Besides that what we have, judicial intervention, पुट्टस्वामी केस, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि यार देखो राइट टू प्राइवेसी जो है ये तो फंडामेंटल राइट्स है। नाउ when this is a fundamental right, if there is a breach of this fundamental right, you can actually approach a government for the remedies. अब इससे क्या हुआ बेसिकली, देखिए जब भी डेटा ब्रीच हो रहा था, नाउ व्हेन सुप्रीम कोर्ट सेड कि इट्स अ फंडामेंटल राइट, तो गवर्नमेंट जस्ट ब्रॉट इन सम मैकेनिज्म, जैसे होता है ना I4C, हमारी कोऑर्डिनेशन कमिटीज़ है इंटरनेट को लेके, या फिर वी हैव सर्ट इन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इंडिया, चीज़ें बहुत है लिखने के लिए। द पॉइंट इज दैट यू हैव टू राइट फ्यू थिंग्स। तो वेरियस लेवल पे किया है हमने, लेजिस्लेटिव, पब्लिक, जुडिशियरी में हम आ गए, राइट। इसके अलावा अगर आप देखेंगे यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट द इंटरनेशनल कोऑपरेशन, क्या है इंटरनेशनल कोऑपरेशन में, ग्लोबल फोरम ऑन साइबर एक्सपर्टीज है। वैसे तो बुडापेस्ट कन्वेंशन भी हमने साइन नहीं किया, इट्स अबाउट द साइबर थिंग, राइट। लिखने के लिए आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो कि मेजर अडॉप्ट नहीं किए तो हम उसको नेक्स्ट पार्ट में लिख सकते हैं रेमेडीज के, कि व्हाट मोर और मे बी अदर थिंग्स कैन बी डन, राइट। बट जैसे कि ग्लोबल जो है हमारा एक फोरम इंटरनेशनल कोऑपरेशन पे, वो वी ऑलरेडी हैव अडॉप्टेड इट, वी आर द पार्ट ऑफ इट। ये कुछ चीज़ें लिखने के लिए और भी चीज़ लिख सकते हैं ना, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन यूरोपियन यूनियन, वहाँ से हमने आइडिया लिया। तो वी हैव द थिंग्स, बट कंसिडरिंग दिस इज जस्ट 250 मार्क्स वर्ड क्वेश्चन, आपने पहले इंट्रोडक्शन लिखी, देन यू टॉक्ड अबाउट हाउ सोशल मीडिया एंड इनक्रिप्टिंग मैसेज पोजेज अ चैलेंज टू द इंटरनल सिक्योरिटी या फिर सिक्योरिटी टू इंडिया, राइट। बॉडी में फर्स्ट पार्ट में आप इसको एलैबोरेट करेंगे, आप लिखेंगे, है ना, बिकॉज दैट इज हाउ द क्वेश्चन इज लुक, है ना। Here, what measures have been adopted at various level to address the security implications? क्योंकि सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन बोला है तो आप बताएंगे कि when you adopted this, इससे क्या हुआ है। हमें पता है द फर्स्ट ओरिजिनेटर, इसको ट्रैक करना होगा। इफ गवर्नमेंट इज आस्किंग टू एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कि प्लीज प्रोवाइड मी हु इज द फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ दिस ऑफेंसिव मैसेज, तो डिग डाउन करेंगे, राइट। सो मेनी थिंग्स आर देयर, यू हैव टू राइट कि क्या होगा, लेजिस्लेटिव मेजर्स थे। इस आईटी एक्ट आने के बाद मे बी देर इज अ पोस्ट विच इज स्प्रेडिंग अ हेट्रेड अमंग टू कम्युनिटीज, सो द सिक्योरिटी implication that there will be a situation of riots within the country which can be handled by this IT rule by tracing the first originator। सेंटेंस फ्रेमिंग जब करेंगे तो थोड़ा बड़ा होता है, राइट। पब्लिक अवेयरनेस, साइबर हाइजीन, ओटीपी आया, ओटीपी नहीं बताएंगे ना, क्यों। इट्स नॉट जस्ट एन फाइनेंशियल फ्रॉड बट अल्टीमेटली दैट मनी इज गोइंग फॉर सम इल पर्पज, ये समझना है आपको। पैसा आएगा, गलत जगह इस्तेमाल होगा, देयर विल बी अ सिक्योरिटी चैलेंजेस, राइट।
पिट्रोस्वामी केस, ऐसे कर करके हम आगे बढ़ेंगे. देन द सेकेंड पार्ट, suggest any other remedies to address the problem. So other remedies. Second part, अब अदर रेमेडीज में ऐसी चीजें बताएंगे विच आर नॉट इन प्लेस. ऑफ कोर्स वी डिडंट अडॉप्टेड इट बट वी कैन थिंक ऑफ इट. सो बुडापेस्ट कन्वेंशन जैसे मैं आपको बोल चुका हूँ, यू कैन एक्चुअली राइट इट डाउन. अब होता क्या है, देखिए, एक काफ़ी मतलब बज़वर्ड है, यूज होता है, एल्गोरिदमिक ट्रांसपेरेंसी. अब देखो, एल्गोरिदमिक ट्रांसपेरेंसी बेसिकली ये होता है कि व्हेन यू आर यूजिंग एनी पर्टिकुलर सोशल मीडिया, that social media, how it operates, its algorithm to make a particular content viral, or maybe a tracking policy, or maybe implication of it, everything, ultimately the output after just someone posted, वो थोड़ी होनी चाहिए. बेसिकली इट्स पार्ट ऑफ अ सिटीजन्स अवेयरनेस कि व्हाट मे बी द रिपरकशन, राइट, ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर एक्ट. तो उसमें एक आप ये लिखेंगे कि एल्गोरिदमिक ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो यहाँ पे अवेयरनेस आएगा. अभी क्या हो रहा है ना कि लाइक इफ आई एम पोस्टिंग समथिंग रॉन्ग, आई एम नॉट गेटिंग एनी मैसेजेस. Why can't be there is a system where once I post something offensive, there can be a warning issued against me that if I use it, or maybe I'm just keep on posting this again and again, after 3 or maybe some kind of number of strike, my channel will be blocked and I will be inquired by the authorities. रेमेडीज वही होते हैं, इट्स अ चैलेंज, राइट. तो हम एक ही चीज़ लिख सकते हैं. इसके अलावा एक और चीज़ होती है, डिजिटल लिटरेसी. क्यों? देखो, साइबर हाइजीन, दिस एल्गोरिदमिक ट्रांसपेरेंसी, दिस आर नेक्स्ट लेवल. फ्यू बेसिक लिटरेसी है ना. If I'm not using a mobile and if someone gives me to use it, or maybe someone is asking to just make a call, हमें बताना पड़ेगा कि how this digital media operate, how you should not supposed to give access to your account or any sensitive information through which even a social media account can be created in your name, है ना. तो ultimately digital literacy is a very broad term. ऐसा नहीं है कि we haven't adopted it, but scope जो है इसका, स्कोप बहुत ब्रॉड है. एंड these are the remedies which you have to put efforts on. कंटिन्यूस प्रोसेस है ये, राइट. तो वो आप एक बात लिखेंगे. इसके अलावा जो भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इसके इम्प्लीकेशन बताएंगे आप. ये तो सोशल मीडिया की तरफ से वार्निंग हो गई, ठीक है. एक है गवर्नमेंट की तरफ से. यू कैन सी अ पर्टिकुलर और मे बी फ्यू एस्पेक्ट्स पीपल नो वेरी वेल. नोबडी नीड टू टेल देम कि यार देखो ऐसा भी होता है. एट ए टाइम कुछ चीज़ें उनको पता ही होती है, बट व्हेन यू टॉक अबाउट अ पर्टिकुलरली दिस सोशल मीडिया मैसेज इंस्क्रिप्शन, दे जनरली लैक इन्फॉर्मेशन. वाई? तो रूल्स एंड रेगुलेशन की इम्प्लीकेशन को इतना ज़्यादा ब्रॉडकास्ट करना पड़ेगा, एंड गवर्नमेंट नीड टू मेक इट रीच टू द रिसिपिएंट. सोशल मीडिया सबके हाथ में है, बट रूल्स एंड रेगुलेशन की इम्प्लीकेशन सबके हाथ में क्यों नहीं है, राइट. सो सम वेज वी हैव टू फाइंड आउट. मे बी जस्ट ब्रॉडकास्टिंग अ मैसेज, लाइक ट्राई, या बैंक का मैसेज आता है ना, जैसे ही कट हो गया कुछ आपके अमाउंट, 20 रुपीज़ विड्रॉ डिपॉजिटेड. तो ऐसे मैसेज यहाँ पे क्यों नहीं आ सकते? As you start posting something, there has to be an algorithm which is just tracking, and if there is something offensive, है ना, सब कुछ AI enabled या फिर मशीन लर्निंग के थ्रू होगा. there is no human intervention, so privacy concern नहीं आएगा. as long as you are not using offensive aspects, content, videos, anything, there will be no repercussion of it. But as you utilize any of these things in your post or something, there should be a message pop up from the government ki look, you committed this, please revert it back within this duration, otherwise there will be a consequences, right. Just a legal route, ultimately that is going to happen.
Now beyond that, one can think of something very innovative which is not actually utilized, but as they're asking some other remedies. अब देखिए रेमेडीज कुछ भी हो सकते हैं, इनोवेशन कैन बी एनीथिंग, राइट? तो अब मान लीजिए कि हमें इसमें और थोड़ा ड्वेल करना है, मोर इनटू इट, यू कैन टॉक अबाउट सोशल मीडिया सेफ्टी इंडेक्स. ऐसा कुछ है नहीं अभी, देयर इज नो सच थिंग. अ पॉइंट इज दैट व्हाई कांट वी हैव, जैसे आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में, बॉन्ड्स में, उनकी रेटिंग्स होती है हाई रिस्क लो रिस्क, है ना? तो क्यों नहीं होता है ये? बेस्ड ऑन द पास्ट एनालिसिस और मे बी द प्लेटफॉर्म यूज्ड फॉर committing a crime, or maybe the platform which actually seen as a threat to the security concerns. तो कोई रिस्क कैटेगराइजेशन हो जहाँ पे एक ओपनली रिपोर्ट्स आ जाए कि यार देखो आपने व्हाट्सएप यूज़ किया, बट इस लास्ट ईयर में या लास्ट क्वार्टर में या मंथ में इसके इतने केसेस थे, तो एक आइडिया तो हो. ऑफ कोर्स देयर आर मल्टीपल सोशल मीडियाज, सबका यूटिलाइजेशन अलग हो सकता है, सो मेनी यूजर्स, व्हाई कांट वी हैव अ डेटा इन अ पब्लिक डोमेन, है ना? तो रेमेडीज कैन बी अडॉप्टेड, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते. इंडेक्स तो हम बहुत सी चीज़ों के लिए लेके आ गए, व्हाई नॉट फॉर दिस? सो जस्ट अ थॉट. नेक्स्ट, ऑथेंटिकेशन. नाउ रिसेंटली IRCTC, है ना, जिससे आप टिकट्स बुक करते हैं रेलवे पे, they have made it mandatory to have a other authentication and then a PAN number authentication for the wallet, and of course to book the Tatkal tickets and so many things. ऑथेंटिकेशन जो है वो आपका यूनिक आईडी से हो, आपका पैन से हो, आई डोंट थिंक देयर इज एनी हार्म इफ यू आर डूइंग इट एनीवे फॉर द बेटरमेंट ऑफ ओवरऑल नेशन एंड द सोसाइटी एंड पीपल अराउंड अस. Anyway, our PAN number and Aadhaar is in public domain. So public domain means public sector banks with the government. If you fill examination form, you file income tax return, so many things are happening now. But one can create any WhatsApp account, Instagram account, Twitter account, right, without having any authentication. Though there is an option that blue tick kind of things, but that is different. Why can't we make it mandatory? So once you have the authentication layer, what will happen? It will have a psychological impact. Oh, look, they're actually taking my particular identification number with them. So if something goes wrong in future, at least government will have a data to analyze. Correct? So these are some innovative ways which you may suggest. There is no end to it, right? Because question, it goes that way only. Look at the question. What measures have been adopted at various level? We did various level. Personal, legislative, judiciary, international. Done. Then suggest any other remedies to address the problem. We have the problem, we can suggest it. Right? So talk about it. And ultimately, here is the conclusion you can talk about. Now we understood it's a social media inscription, right? And ultimately it's about social or maybe security implications of it. Now when you talk about IT rule 2021, it talks about digital media ethics code. Now understand why I'm just emphasizing on it. Something which should come within. I understand government is there, maybe private organizations are there, then citizens are there. Whenever you talk about implementing any rules, regulation, the major problem is with its application, implementation. Concern, what is concern? Huge population, and that monitoring
has limitations, right? We do understand. But then ethics, self-awareness about what? Wrong, right? Hmm? Government are doing their part. I am not denying it. But when you talk about social media and inscription, we have to understand a citizens or maybe a participant. Why? It's a social media. Some or other people must be observing it. So there is need of a ethical reformation within the participant to strengthen the already efforts done by the government and private organization to limit these security implication of social media. And also government should provide a unique number, like we have 100, right, for the police. Why we cannot have a unique number plus feedback? Just to talk about any offensive messages which they are witnessing in any group, right? So there has to be a norm, right? Once you develop a norm to integrate such thing within a daily life, there will be a result in a longer run. Of course, we will have a lot of data. I'm not saying that is so easy, but yes, it's doable. Government already started working on feedback from the citizens. So why not here? Government can't be a part of each and every group, every social media, but citizens are already, right? So this is how you can conclude on these grounds. So think, right? It's not just about writing, but thinking on the perspective, so that you can have your some uniqueness in your writing. All right. So this is how you can attempt this question. Thank you very much, everyone.